प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 27 अप्रैल को आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। आप सभी को पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर हम देखते हैं किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 8th क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश है और समय है 2 घंटे 30 मिनट और मार्क्स है 80। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये पेपर 4 भागों में बंटा हुआ होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 20 यानी 1 से 20 तक प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हु आर किल्ड इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट में कौन मारा गया। हाउ डिड टेरी बिकम अवेयर ऑफ द अपकमिंग कैलेमिटी। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हैं। पूरे पेपर का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। हु वाज सेवर्ड विथ इग्नेजिस, हिज वाइफ, 3 अदर चिल्ड्रन, हिज फादर, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 25, 1915 वाज द डेट ऑन विच according to Jim a Christmas morning should be called and frosty, warm, comfortable, beautiful and shining, raining. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बट द ट्रूथ आई एम एस्मेड टू से इज दैट प्रीच बिगन इट इन द अबव सेंटेंस। प्रीच रिफर टू द जर्मन सोल्जर, द जर्मन कमांडर इन द स्टोरी, द ब्रिटिश सोल्जर, द ब्रिटिश कमांडर इन द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 7, मेघना सेव्ड herself from tsunami by swimming towards the shore, holding on to a wooden door, the help of the other 77 people who were swept away with her, the relief helicopters. Question number 8, the tsunami waves were triggered by a massive earthquake of northern Sumatra, of Thailand, of Andaman Island, of the Nicobar Islands. Next question, question number 9. Primal Ghosh was successful in making Bipin Babu laugh at him, think that there might be something wrong with his mind, that he had really been to Ranchi, that he was no stranger. Question number 10. The worst sufferers under the British rule were who served in East India Company, the business community, the religious leader, the poor farmers and artisans. 11 number person. In the early 19th century, Raja Ram Mohan Rai was an able fighter, an important reformer, a great religious person, a great king. Next, the business community welcomed the British because they liked Europeans, they disliked their own countrymen. The British rule had brought a degree of peace, they were afraid of British. Question number 13. Sunilal came to visit Bipin Babu again and again because he was his old friend. It was his custom. He wanted to borrow some money. He wanted him to help him get a job. While climbing the mountain, the climbers get inspiration from the beautiful nature, difficulty of climbing, thinking of God, each other. 15. Under regulation third of the British rulers, Indians were to pay higher taxes. British goods became cheap. Cotton wearers became poor. Indians could be jailed without trial in a court. नेक्स्ट देखिए क्या है। पैसेज है कि पेनी turned his head, Jody stood beside him, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. Who was Penny? Penny कौन था। सत्रह, वाज पेनी प्लीज टू सी द फोन, क्या पेनी फोन को देखकर खुश था या वाई क्यों। फाइंड ए वर्ड द पैसेज विच मीन्स ग्रिप्ड, ग्रिप माने होता है कसकर पकड़ना, क्लच्ड हो जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स हो गया। आगे देखो, द फोन स्टार्ट आफ्टर हिम, ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन, इट लुक टू वे
Few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing of follow him and belonged to him. It was his own. He was light-headed with joy. The fun started after Penny. नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है. ही वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय एज ही फेल्ट दैट. और उसके बाद रीअरेंज. अब देखो ये आपके ऊपर वाले 20 प्रश्न पुस्तकों से थे. अब ग्रामर के हैं वो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा. अरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है 3 से लेकर 5 तक. तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे. तो तीसरे में पहले क्या लिखोगे आप? दे. उसके बाद साइक्रिया आर. फिर लिखोगे गोइंग. फिर लिखोगे टू मार्केट. टू मार्केट. तो आपका वाक्य क्या हो गया? दे आर गोइंग टू मार्केट. ये हो गया तीसरा. उसके बाद चौथा है, इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट क्या होगा. गर्ल्स होगा. गर्ल्स. उसके बाद साइकिल क्या आ जाएगी? आर. फिर वर्ब आ जाएगी सिंगिंग. सिंगिंग. गर्ल्स आर सिंगिंग. लड़कियां गा रही. क्या गा रही है? ए सॉन्ग. ए सॉन्ग. कहाँ पर? इन द रूम. तो इन द रूम. वाक्य देखो. गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम. तो इस प्रकार से ये आपका चौथा वाक्य होगा जो आपको रीअरेंज करना है, सही लिखना है. अब पांचवा देखिए. इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है चाइल्ड. इसमें सब्जेक्ट है चाइल्ड. तो डेफिनेट है तो पहले करोगे द चाइल्ड. बच्चा. वॉज. साइकिल आ गई. फिर वर्ब आ जाएगी फ्लाइंग. FLYING. फ्लाइंग. फिर आ जाएगी एक काइट. ऑब्जेक्ट आ जाएगा. देखो क्या है? द चाइल्ड वाज फ्लाइंग ए काइट. बच्चा एक पतंग उड़ा रहा था. बच्चा पतंग उड़ा रहा था. तो ये पांचवा वाक्य आपका हो जाएगा. आगे देखो प्रश्न नंबर 6, 7, 8. यहाँ पर क्या कहा गया है? फिर इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच. वॉक अलॉन्ग द सी शोर. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच. मैंने बीच पर जाने का निश्चय किया. एंड वॉक अलॉन्ग द सी शोर. तो एंड आ जाएगा इसमें. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं अध्ययन करता हूँ. तो आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं अध्ययन करना चाहता हूँ. तो इसमें बिकॉज आ जाएगा. ही वर्कड वेरी हार्ड. उसने कठोर परिश्रम किया. कुड नॉट सक्सीड. फिर भी उसे सफलता नहीं मिली. तो इसमें आ जाएगा बट कुड नॉट सक्सीड. अब देखो आगे 9 से लेकर 12 तक क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं जो मीनिंगफुल होने चाहिए. सेल्डम होता है यदा कदा. आई सेल्डम. मैं यदा कदा गो टू जयपुर. मैं यदा कदा ही जयपुर जाता हूँ. तो आई सेल्डम गो टू जयपुर. ये जो शब्द है आपके एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह है, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना था. आई सेल्डम गो टू, यानी इस सेल्डम शब्द का प्रयोग करना है. कहीं पर भी करके आप वाक्य बना दीजिए. 10वां देखो हार्ड. तो सी वर्क्स हार्ड. क्या हो जाएगा? सी वर्क्स हार्ड. वह कठोर परिश्रम करती है. 11 वेरी. जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट. आप इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट हो गया. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. वह बहुत ही बुद्धिमान है. ये सेंटेंस हो गया आपका इसका प्रयोग करते हुए. फिर 12 नंबर वाक्य में देखिए आप दीर्घ शब्द आपके पास और आप दीर्घ से सेंटेंस बनाएंगे. तो दीर्घ इंट्रोडक्टरी वर्ड है. इससे वाक्य कैसे बनेगा? देखो देयर आर 2 बॉयज.
दो लड़के हैं, या तो एक ये तरीका हो गया, एक ऐसा हो गया आई वेंट दियर, मैं वहाँ गया, आई वेंट दियर, मैं वहाँ गया, ये भी एक वाक्य का तरीका है। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए आप 13 नंबर से लेकर 16 नंबर तक ये पाठों से प्रश्न है। हु डिड कॉनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वाच, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। आगे बढ़ते हैं। हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, चुनीलाल कौन था, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था। वाई इज एडवेंचर, वाई इज रिस्की आल्सो प्लेजर, वाई वाज मील व्हील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, ये हो गया। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 20। इमेजिन यू आर पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप पुनीत झुंझुनू से हैं और आप अपने दोस्त को पत्र लिखो डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने के महत्व के बारे में आपको पत्र लिखना है। और 21 नंबर प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फी कंसेक्शन, यानी फीस माफ के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। 22 नंबर देखो क्या है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स इन माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर के बारे में आपको बनाना है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नेम, एज, टीच, मेथड ऑफ टीचिंग, पंक्चुअल, नेचर, काइंड, प्लेयर, पुअर, स्टूडेंट्स, हेल्प, इनका प्रयोग करते हुए। प्रश्न नंबर 23 देखो क्या है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। ए लायन एंड माउस कहानी को आपको तैयार करना है, इस आउटलाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, घटना के अनुसार आपको वाक्य तैयार करना है कि पहले कौन सा। देखो, द क्राउ वाज वेरी थर्स्टी, कौवा बहुत प्यासा था। देयर वाज ए पॉट अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे एक बर्तन था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। इट फ्लू ईयर एंड ईयर इन सर्च ऑफ, पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। देयर वाज सम वाटर इन द पॉट। अब देखो सबसे पहले आएगा 3 नंबर वाला वाक्य कि वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, तो 2 नंबर पर आ जाएगा पहला वाक्य। पहले तो लिख दो आप 3 नंबर वाला, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, फिर 2 नंबर पर लिखो द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, कौवा बहुत ही प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, तो ये हो गया 4 नंबर वाला, कर दो 3 नंबर पर, ठीक है। फिर उस एक पेड़ के नीचे एक पानी का बर्तन दिखाई दिया, तो 2 नंबर वाला कर दो 4 नंबर पर। देयर वाज ए पॉट अंडर ए ट्री, और उस पोट में क्या था, पानी था, तो ये आप 5 नंबर वाला 5 नंबर पर लिख दो। तो ये आप क्रम रखोगे, 3 नंबर वाला 1 नंबर पर, 1 नंबर वाला 2 नंबर पर, 4 नंबर वाला 3 नंबर पर, 2 नंबर वाला 4 नंबर पर, और 5 नंबर वाक्य है वो अंत में ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।